Hello students, today we are going to start our exercise 13.2 from the chapter Exponent and Powers of class 7. So question number 1 is using laws of exponents, simplify and write the answer in exponential form. So we have to use the laws of exponents, then we will simplify, and then we have to write the answer also in the exponential form, like in this form, है ना, base and exponent. So that is called exponential form. Let's start from the question number 1. So question number 1 is 3 power 2 3 power 4 into 3 power 8. Base same, right, and powers different, and sign of multiplication. When bases are same, sign of multiplication, then powers will add. A power m into a power n is equals to a power m plus n. So answer is 2 plus 4 plus 8. So 3 power 2 plus 4 6, 6 plus 8 14. Answer. So this is the answer, and this is exponential form also, right? So 6 power 15 divide 6 power 10. Now again base same but sign of division, so powers subtract. 6 power 15 minus 10. So this is 6 power 5. This is also exponential form. This is our second part. Now we have our third part. Third part is a power 3, a power 2. So now again base same, parts different, and sign of multiplication, then powers add. A power 5. Answer. Again we have used this law. You will write same this thing here also, right? Next is fourth part. So fourth part is 7 power x into 7 power 2. Again base same, sign of multiplications, powers add. Now x plus 2, we will write it x plus 2 because these two not like terms, right? If these will be like terms, then we can add. Now these are different, these are not like, these are unlike terms, so we can't add these terms also. So we have used same by using a power m into a power n is equals to a power m plus n. You will write same here. Okay, next we have fifth part. So fifth part is 5 power 2 again power 3 divide by 5 power 3. So now first of all we will use the law of power. A power m again power n, so power की power है ना. So 5 2 into 3, so this will remain as it is. So we have used here by using a power m again power n is equals to a power m into n, right? So 5 power 6 and 5 power 3. Now base same, sign of division, powers will subtract. So we have used by using a power m divide a power n is equals to m minus n. So 5 power 3 is the answer. This is our fifth part. So next we have in this question, in fifth part we have used two laws. So we have to write two laws also. I have written also, right? So next one is 2 power 5 into 5 power 5. Solution 2 power 5. Now bases are different. Base 2, base 5. Base different, sign of multiplication, but powers are same. When the terms are like this, then we have to multiply the base and single power. So by using a power m into b power m is equals to ab power m. Now this is 10 power 5. So this is the answer, and we have used this law over here. Now next we have seventh part. So seventh part is a power 4 into b power 4. Again
base different but par same, so we will write AB par 4, and same law we will write here, A par m into B par m is equals to AB whole par m. So you have to write, I will not write now here. Next we have 8th part. So 8th part is 3 par 4 again par 3, right? So par again par, so we have to multiply the pars. 3 par 4 into 3, this is 3 par 12. So we have used A par m again par n is equals to A par m into n. You will write this over here, right? Now next we have 9th part. So what is the 9th part? That is 2 par 20 divide 2 par 15 and bracket multiply 2 par 3. Now they have given, first of all we will solve the bracket according to BODMAS. According to BODMAS, if we are doing the bracket first, so which law? Again this law, A par m divide A par n, then pars will, here is minus, right, m minus n, so you will write this law over here. Now this is 2 par 5 and 2 par 3. Now base same, pars add because sign is of multiplication. So again you will write the, by using A par m into A par n is equals to A par m plus n. So this is 2 par 8 answer, right? This is the 9th part. Now we have the last part with us, that is 10th part. So what is 10th part? That is 8 par t divide 8 par 2. Now again t minus 2. Base same, division sign, then pars will subtract. So again by using A par m divide A par n, A m minus n. This is the answer, and our question number 1 we have completed, right, by using laws of exponents. Again we can't solve this exponent because these are not like, these are unlike terms ना. यहाँ t दे रखा है, दिस इज -2. अगर यहाँ t होता तो फिर मैं देखती कि ये लाइक है, क्योंकि यहाँ पे भी t है, ये भी t होता है, t के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके आगे 1 दे रखा है आपको, 1t - 2t, फिर सॉल्व कर सकते. ये t दे रखा है, इसके पास t नहीं है, सो दीज आर अनलाइक टर्म्स, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे. So next question, question number 2. See next question, question number 2. Simplify and express each of the following in exponential form. Again simplify and express in exponential form, right? So first part, this question is having 12 parts, so we will do all the parts in our lecture. Now see 2 par 3, 3 par 4, ये भी पहले से ही आपको पार में दे रखा है, राइट. 3 par 4 पहले से ही पार में दे रखा है. 2 को मैं कुछ और नहीं लिख सकती, 3 को भी मैं कुछ नहीं लिख सकती, लेकिन आगे उसने दिया आपको 4 और यहाँ पार नहीं दे रखी है आपको, तो 4 को हम अपनी ओर से कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं. इसको ऐसे ही लिखा है, इसको ऐसे ही लिख रही हूँ. 2 को यहाँ साइड पे मैं एलसीएम लेके बता रही हूँ आपको, क्या लिख सकते हैं. एलसीएम है, 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, मतलब 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं. इसका मतलब ये क्या बन गया, 2 को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो ये बन गया 2 par 2. मतलब इस 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 par 2, राइट. ये इस 4 की जगह मैंने लिख दिया. आप सिर्फ ये लिखोगे, ये आप साइड पे रफली लिख लेना विद पेंसिल, राइट. सो 32. अब 32 2 के टेबल पे 16 आएगा, फिर करोगे 8 आएगा, फिर करोगे 4 आएगा. ये एलसीएम आप पेन से ले सकते हो, ये चीज़ आप पेंसिल से लिखोगे अपने लिए. अब देखो 2 कितनी बार है, 5 टाइम्स दे रखा है, मतलब ये 3 तो मैं एज इट इज़ लिखूँगी. ये 32 2 की पावर 5 बन रहा है, 1 2 3 4 5, मतलब इस 32 की जगह मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 5, है ना. अभी यहाँ पे 2 par 3 भी है, 2 par 2 भी है, मैं इसको
आगे लिख लेती हूँ पहले, ये 3 पार 4 पीछे लिख देती हूँ, ये 2 पार 5 नीचे रहने देती हूँ, ये 3 इधर कर दिया मैंने। अब देखो बेस सेम है, पार्स ऐड हो जाएंगी, ऊपर क्या आएगा 2 पार 3 प्लस 2 और 3 पार 4, ये दोनों क्या हो रहे हैं माइनस, क्योंकि बेस सेम है, इसकी पार कुछ नहीं है, मतलब इसकी पार क्या है 1 और ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों आपस में, तो ये तो ऐसे हो गया और ये बन गया 2 पार 5। ठीक है, अभी यहाँ क्या आएगा आपके पास फिर 2 पार 5 इंटू 3 पार 3 अपॉन में भी आ गया 2 पार 5, ये आप कैंसिल कर दो तो बचा गया आपके पास 3 पार 3 आंसर। तो यहाँ पे 2 लॉ यूज़ किए आपने, यहाँ लिख सकते हो आप बाय यूजिंग, जो 2 यूज़ किए हैं कौन कौन सा, ए पार एम इंटू ए पार एन इक्वल्स टू एम प्लस एन, एक पार्स ऐड करने वाला, और दूसरा जब आपके पास डिवीज़न थी तो पार्स सब्ट्रैक्ट करने वाला। यहाँ राइट साइड पे दोनों हमने लिख दिए, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसी का नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड है हमारे पास 5 पार 2 अगेन पार 3 इंटू 5 पार 4 और ये ब्रैकेट डिवाइड बाय, अभी पहले ब्रैकेट दे रखी है तो ब्रैकेट सॉल्व करनी, लेकिन उस ब्रैकेट के अंदर भी आपको ब्रैकेट दे रखी, मतलब वो पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं यहाँ पे पार की पार दे रखी है, तो 2 3 ज़ा कितना हो गया 6, ये 5 पार 4 ही रहेगा, ये डिवीज़न हो गई। ठीक है, यहाँ यूज़ किया जो लॉ, वो लॉ हमने यहाँ लिख देना है। कौन सा लॉ यूज़ किया, ये वाला, तो ये इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो मैंने यहाँ यही किया 2 3 ज़ा 6। अब बेस सेम है, पार्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ये ऐसे ही रहेगा, ये तब तक ऐसे ही चलता रहेगा जब तक सॉल्व नहीं करते। अब यहाँ मैंने फिर से लॉ यूज़ किया, कौन सा, बाय यूजिंग बेस सेम वाला ए पार एम इंटू ए पार एन वाला, इक्वल क्या है वो ए पार एम प्लस एन के, तो यहाँ आ गया 5 पार 10 डिवाइड किया 5 पार 7, बेस सेम है, डिवीज़न का साइन है, तो पार्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब मैं फिर से लॉ यूज़ कर रही हूँ, कौन सा लॉ यूज़ कर रहे हैं हम लोग, डिवीज़न का, है ना। तो बाय यूजिंग क्या आएगा आपके पास, ए पार एम डिवाइड ए पार एन इक्वल्स टू एम माइनस एन। अब देखो एक ही क्वेश्चन में 3 लॉ यूज़ हुए हैं, 1 2 3, 10 में से 7 गए 3, सो दिस इज़ द आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ये मेरा हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, यहाँ दे रखा 25 पार 4, यहाँ दे रखा 5 पार 3। अब ना तो ये 25 के जैसा लग रहा है ना ही ये, अब मैं 5 का तो कुछ नहीं कर सकती, 5 एक प्राइम नंबर है, मैं इस 25 को भी प्राइम की फॉर्म में लेके आ सकती हूँ। सबसे पहला काम आपने एलसीएम ही लेके देख लेना है, 5 सिर्फ 5 के टेबल पे ही जाता है, तो 5 1 ज़ा 5 ये हो गया, मतलब 25 को मैं 2 बार लिखूंगी, मतलब क्या लिख सकते हैं 5 पार 2, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं 5 पार 2, ये तो सिर्फ 25 को लिख सकते हैं, तो 25 की जगह ही लिखा है, बाहर जो पार थी वो तो बाहर ही रहेगी, बाकी एज इट इज़। अब पार की पार आ गई मेरे पास, पार की पार को हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, लॉ यूज़ होना है, क्योंकि यहाँ क्या लिखोगे, बाय यूजिंग ए पार एम अगेन पार एन इक्वल्स टू ए पार एम इंटू एन। पार की पार थी तो पार्स क्या हो गई मल्टीप्लाई हो गई, कितना आया 5 की पार 8 आ गया, सो ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब बेस सेम हो गया, पार्स डिफरेंट, साइन ऑफ डिवीज़न, तो पार्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 8 माइनस कितना हुआ 3। अभी कौन सा लॉ यूज़ किया, बाय यूजिंग ए पार एम डिवाइड ए पार एन इक्वल्स टू ए पार एम माइनस एन, ये भी हो गया। अभी ये हो गया 5 पार 8 माइनस 3, दिस इज इक्वल्स टू 5, सो दिस इज द आंसर। अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, सॉल्व नहीं कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है, सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज आवर थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 3 into 7 पार 2 11 पार 8 अपॉन
21 into 11 power 3, right? Now again 3 is a prime number, 7 is a prime number, 11 is also a prime number. What is prime number? Which is divisible by itself only, जो अपने ही टेबल पे जाता है. अब लेकिन 21 is not prime number. Now we have to take LCM of 21. 3 sevens and 7 ones. That means मैं 21 को कैसे लिख सकती हूँ? 3 into 7 करके. ये ऐसे ही लिखा, ये 7 पार्ट 2 लिखा. ये दोनों देखो यहाँ पे ये तो डिवाइड हो रहे हैं और बेस सेम है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी? माइनस में यहाँ पे ही माइनस कर देती हूँ. अब नीचे मेरे पास 21 बचा. बस 21 को मैं कैसे लिख, ये मैं सॉल्व कर चुकी हूँ. ये नहीं सोचना कि अब 11 नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने मर्ज कर लिया. यहाँ पे लॉ लगा लिए. यहाँ आप साइड पे लिख लोगे बाय यूजिंग a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m माइनस n, राइट? ये लॉ यूज हो गया. तो यहाँ 21 की जगह क्या लिखना है? 3 into 7, राइट? 3 से 3 देखो कैंसिल हो गया. यहाँ आपके पास क्या बचा? 7 पावर 2. और देखो यहाँ अब ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं. तो यहाँ पे भी वही लॉ यूज हो गया. इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा. 7 पावर 1 आ गया. 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो 11 पावर 5 ये मेरा हो गया 4th पार्ट का आंसर. एक ही लॉ यूज़ हुआ तो मेरे को 2 बार यहाँ पे लिखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम लॉ यूज़ हुआ और यहाँ पे भी हमारा सेम लॉ यूज़ हुआ. तो हमारा पास यही मेरा आंसर हो गया, राइट? So this is our 4th part. Next we have 5th part. So what is the 5th part? That is 3 power 7 upon 3 power 4 into 3 power 3. अब देखो पहले इसको अगर मैं छोड़ दूँ, इस चीज़ को छोड़ देती हूँ. यहाँ पे देखो मतलब इसको ऐसे ही रख रहे हैं हम लोग. 3 power 7 को इसको ऐसे लिखा, राइट? अब 3 बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी? यहाँ पे ऐड हो जाएंगी. यहाँ फिर से लिख सकते हो बाय यूजिंग कौन सा लॉ यूज़ किया? a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल्स टू a पावर m प्लस n. अब ये क्या हुआ? 3 पावर 7 अपॉन ये भी 3 पावर 7. अब एक तो ये कटिंग हो जाएगी, राइट? एक तो कटिंग करके सीधे ही 1 आ जाएगा. सेकेंडली अगर मैं लॉ यूज़ करना चाहूँ, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. तो क्या बनेगा? 3 पावर 0 और एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होता है? 1 होता है. दिस इज़ द आंसर. तो यहाँ लॉ यूज़ किया. क्वेश्चन यहाँ पे भी ख़त्म हो सकता था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे लॉ भी यूज़ करना बता दिया कि लॉ भी यूज़ कर सकते हैं. क्या यूज़ किया हमने? यहाँ n ले लो, ये m हो गया, सो m माइनस n हो गया आपके पास. सो दिस इज़ द 5th पार्ट. Next 6th part. 2 power 0. Anything power 0, that is 1. 3 power 0, that is also 1. 4 power 0, that is also 1. So 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 1, 3. So this is the answer. This is our 6th part. Next we have 7th part. 2 power 0. Now 3 power 0 and 4 power 0. पहला क्वेश्चन सेम था, लेकिन यहाँ पे प्लस था. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखी, होगा तो 1 ही ना. और 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ, हमेशा क्या रहता है? 1 ही रहता है. नेक्स्ट है मेरे पास 8th पार्ट. सो 8th पार्ट में आपको क्या दे रखा है? 8th पार्ट है हमारे पास 3 पावर 0 प्लस 2 पावर 0 और मल्टीप्लाई दे रखा है 5 पावर 0. पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है. इसकी पावर 0 1, इसकी पावर 0 1 और मल्टीप्लाई इसकी पावर 0, ये भी क्या होगा? 1. अब 1 प्लस 1 2 होगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है. तो ये मेरा आंसर हो गया 2. सो दिस इज़ द आंसर, राइट? नेक्स्ट वी हैव 8th भी हो गया. नाउ 9th पार्ट. व्हाट इज़ 9th पार्ट? 2 पावर 8, a पावर 5, 4 पावर 3 और a पावर 3, राइट? अब यहाँ पे देखो ये प्राइम है, ये तो वैसे ही मेरे पास क्या दे रखा है? कोई वेरिएबल दे रखा है ना, ABC वेरिएबल्स दे रखे हैं. तो अब 4 प्राइम नहीं है, मेरे को 4 प्राइम की फॉर्म में लेके आना है. तो 4 को तो आपको पता है, आप जितने क्वेश्चन कर लिए हैं कि 4 को कैसे लिख सकते हैं. 2 की पार्ट 2 बार लिखा है यहाँ पे, मतलब 2 की पार्ट 2 करके क्या बन जाता है? ये 4 ही बन जाता है. मतलब 4 की जगह मैं ये भी लिख सकती हूँ 2 पावर 2. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 पावर 8 एज इट इज़ लिखेंगे. यहाँ मैं लॉ यूज़ कर रही हूँ, है ना,
क्या आ जाएगा 5 माइनस 3, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो जाएगा पार्ट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब यहाँ 4 की जगह मैं लिख रही हूँ 2 की पावर 2, बाहर क्या है 3, वो ऐसे लिख दिया। यहाँ यूज़ किया बाय यूजिंग कौन सा लॉ, ए पावर एम अपॉन ए पावर एन, क्या आएगा आपके पास ए पावर एम माइनस एन, ये यूज़ किया, ये लिख दिया। अभी 2 पावर 8, ए पावर कितना आएगा 2 आएगा, है ना। अब 2 3 जा कितने हो गए 6, मैं यहाँ लिख रही हूँ पहले बाय यूजिंग लॉ यूज़ किया, ए पावर एम अगेन पावर एन कितना आया एम इंटू एन, मल्टीप्लाई वाला लॉ यूज़ किया है। अभी यहाँ यूज़ करेंगे 2 पावर 8, तो यहाँ हो गया ए पावर 2, ये बन गया 2 पावर 6। अब देखो ये बेस सेम है लेकिन हो क्या रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 8 माइनस 6 ए पावर 2। अगेन बाय यूजिंग मैंने फिर से यहाँ लॉ यूज़ किया, यही वाला, ये वाला माइनस वाला लॉ आप यहाँ लिखोगे, उठा के खुद से लिख लेना, ये वाला लॉ यहाँ पे, तो यहाँ बन गया 2 पावर 2 इंटू ए पावर 2। अब देखो बेस डिफरेंट है लेकिन पार्ट्स सेम और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जब ऐसा हो तो बेस क्या हो जाते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्या आएगा 2a पावर 2, राइट। तो यहाँ पे भी बाय यूजिंग क्या लिखोगे a पावर m इंटू बी पावर m, a इंटू बी पावर m। सो दिस इज द आंसर। ये हमारा था 9th पार्ट, राइट। नेक्स्ट 10th पार्ट, सी नेक्स्ट 10th पार्ट। अब यहाँ पहले से ब्रैकेट दे रखी है, बेस सेम है, डिवीज़न हो रही है, तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अब लॉ आपको याद हो जाने चाहिए, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 8। मैंने यहाँ पे लॉ यूज़ किया, लॉ मेरे को यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग कौन सा लॉ यूज़ किया, ए पावर एम अपॉन ए पावर एन इक्वल्स टू पार्ट्स क्या हो गई माइनस हो गई। अब बेस सेम है, साइन मल्टीप्लिकेशन का है, पार्ट्स क्या हो जाएंगी ऐड। अब कौन सा लॉ यूज़ किया बाय यूजिंग ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल्स टू एम प्लस एन, ए पावर 10। ये मेरा हो गया 10th पार्ट, राइट। नेक्स्ट 2 पार्ट्स आर लेफ्ट, देन वी विल कंप्लीट आवर क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। नेक्स्ट है 4 पावर 5, ए पावर 8, बी पावर 3 अपॉन 4 पावर 5, ए पावर 5, बी पावर 2। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ, अब कैंसिल आउट करना है कैंसिल आउट कर दो, नहीं तो बेस सेम डिवीज़न हो रही है पार्ट्स सब्ट्रैक्ट, सेम बेस सेम डिवीज़न हो रही है पार्ट्स सब्ट्रैक्ट, ये भी बेस सेम है डिवीज़न हो रही है पार्ट्स क्या हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट। ये बन गया 4 पावर 0, ये आ जाएगा ए पावर 3 और ये आ जाएगा बी पावर 1। इसकी पावर 0 तो 1 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे आ गया, मतलब ये आ गया ए क्यूब बी। अब किसी भी नंबर की जब पावर 3 दे रखी है तो हम उसको क्यूब भी बोल देते हैं, ए क्यूब, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ लॉ कौन सा यूज़ किया बाय यूजिंग ए पावर एम अपॉन ए पावर एन, डिवीज़न वाला लॉ, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 11th, ठीक है। नेक्स्ट देखो 12th, 2 पावर 3 इंटू 2, ये ब्रैकेट में दे रखा है, इसका मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर बाहर पावर 2 दे रखी है, तो पहले ब्रैकेट देखो, ब्रैकेट में बेस सेम है, जिसकी पार ना हो उसकी पार क्या होती है 1। तो पहले तो अंदर का लॉ यूज़ करेंगे, बाहर की पार ऐसे ही रखेंगे, बाहर जो जैसे था वैसे ही रखा, अंदर की पार को सॉल्व किया। कौन सा लॉ लगाया बाय यूजिंग ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल्स टू एम, ये हो गया 2 पावर 4 अगेन पावर 2, पार की पार दे रखी है 2 पावर 8 आंसर। यहाँ फिर से लॉ यूज़ किया है, सो
इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने आज कंप्लीट किया है, राइट। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5. Thank you.